Hey guys, this is Ankush Sharma, your quant and analytical reasoning faculty from 12 minutes to CLAT. I hope all of you are doing really well and are in extremely great health. So what is going to be the agenda of this session? Basically, as the thumbnail have suggested you, that we are going to discuss top 5 short topics. So basically, some of you are still confused how to start maths, what are going to be the major topics or the most important topic in quant section. So this section is all about 5 most important, I can say short topics. Short topic means definitely you are going to get the questions from those 5 topics in the quant section. तो वो कौन से 5 टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस हाउ टू डू दोस टॉपिक. अगर हमें कुछ नहीं आता उसमें हाउ टू स्टार्ट विद दैट एंड कैसे हम उस टॉपिक्स के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो दैट्स द एजेंडा बिहाइंड टुडेज सेशन. So let's quickly start the session. So first topic, which is the most important topic in any of the exam in which quant is coming, is percentage and its application. So when I talk about percentage and its application, इसमें आता क्या है पहले वो समझते हैं. First of all, the basics of percentage will come under this topic. Basic of percentage means how to calculate percentage. Whenever you want to put the sign of percentage, multiply it by 100. Whenever you want to remove the sign of percentage, divide by 100. परसेंटेज चेंज क्या होता है, परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्वांटिटी बाय व्हिच यू आर कंपेयरिंग शुड बी इन द डिनोमिनेटर, क्वांटिटी व्हिच शैल बी कंपेयर्ड शुड बी इन द न्यूमरेटर, परसेंटेज के लिए इनटू 100. देन समथिंग लाइक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, चेंज ऑफ बेस. सो दीज आर द बेसिक टॉपिक्स ऑफ परसेंटेज. Once you are done with those basics, now you can move on to the application based on percentage. अब ये application वाले कौन से क्वेश्चन होते हैं सर? Profit, loss and discount, it is not a new topic. It is just the application of whatever you have done in percentage. अगर आपको अच्छे से multiplying factor आता है, सारे question easily solve हो जाएंगे. Same goes with SICI also. Most of you fear a lot from this compound interest वाला topic. It is nothing but the extension of whatever we have done in percentage basic. तो अगर हमको basic अच्छे से आ गया percentage का, trust me, profit, loss and discount, simple interest, compound interest are going to be the extension of that only. So once that is done, then your first unit, or I can say first short topic is over, that is percentage and its applications. Trust me, in your paper definitely you are going to get a question based on profit loss, definitely you are going to get a question based on SICI. पक्का आएगा ही आएगा. तो ये हमारे लिए बहुत ही important topic है to start our preparation with. Second most important topic is going to be your ratio and its application. अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाएगी? रेशियो, बेसिक्स ऑफ रेशियो, हाउ टू सॉल्व द रेशियोज एंड ऑल दैट, वो सब करना है. इसमें जबरदस्ती की चीजें नहीं करनी कि CFD कर रहे हैं, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, ऑल्टरनेंडो, ये सब चीजें नहीं आएंगी. क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में? रेशियो का बेसिक आना चाहिए, हाउ टू सॉल्व रेशियोज. दोनों मेथड होते हैं, दोनों मेथड हम लोग को आने चाहिए. देन द एप्लीकेशन. अब रेशियो की एप्लीकेशन कहाँ पे आएगी? एवरेज वाले क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, प्लस मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले क्वेश्चन. ये दोनों पार्ट उसी का, इसमें रेशियो ही यूज होगा. मिक्सचर एंड एलिगेशन करोगे पूरा रेशियो ही यूज होने वाला है, ठीक है, और थोड़ा एवरेज भी यूज होने वाला है, वेटेड एवरेज वाला कॉन्सेप्ट. तो वंस दैट इज डन, योर दिस चैप्टर इज आल्सो ओवर. डेफिनेटली इन योर एग्जाम यू आर गोइंग टू गेट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर, एलिगेशन एंड एवरेजेस आल्सो, राइट? सो 2 units are over. First you have to do these 2 units because these are the most you can say simpler units, plus definitely you are going to get at least 4-5 questions based on these 2 units. ये दोनों हो गई तो at least 4-5 क्वेश्चन तो अपने सिक्योर हो ही जाएंगे. Then we'll be moving on to the third chapter, time, speed, distance, time and work. But when I talk about time, speed, distance, time and work, if you ask me, सर इसमें तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लाइक एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बोट एंड सी, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन. इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सो इफ यू आस्क मी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम तो उसी का पार्ट हो गया, आएगा ही आएगा. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क, चाहे वो पाइप एंड सिस्टम पे हो, डायरेक्ट टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. प्लस 1 क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग फ्रॉम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन और फ्रॉम द बोट एंड सी. इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तो एटलीस्ट हम ये भी कर लेते हैं इस चैप्टर में, तो वी विल बी इन अ पोजीशन, अगर 3 क्वेश्चन आए तो 2 हम आंसर कर पाएंगे फॉर श्योर इस टॉपिक से, राइट? थर्ड थिंग इज आल्सो ओवर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन. फोर्थ वन क्या है सर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट चैप्टर आल्सो, दैट इज मेंसुरेशन. मेंसुरेशन मींस measurement of areas, measurement of volumes, measurement of perimeters, measurements of circumferences, and everything will be your mensuration.
So mensuration is divided into two parts. Mensuration 2D, two-dimensional figures which have only areas and perimeters, does not have volume. And mensuration 3-dimensional figures which have volumes also. For example, in this room in which I am sitting over here, तो इसका volume भी calculate कर सकते हो, surface areas calculate कर सकते हो, perimeter, बहुत सारी चीजें हम वहाँ पे करनी पड़ती हैं. अब इसको कैसे करना है? देखो, ज्योमेट्री का थोड़ा सा बेसिक्स करना पड़ेगा. 2-डायमेंशनल फिगर्स के लिए आपको पता होना चाहिए सर्कल क्या होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, देन ट्राइंगल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, लाइंस के बारे में पता होना चाहिए. तो वो थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, तभी हम 2-डायमेंशनल फिगर का मेंसुरेशन वाले इक्वेशन इजीली कर पाएंगे. 3-डायमेंशनल के डायरेक्टली यू कैन learn the formulas and start solving some questions. थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो definitely you will be in a position to do those questions as well. Done, sir. First topic over, percentage and its application. Second topic, ratio and its application. Then third topic comes TSD, time and work. यहाँ पे time and work ज़्यादा important है. Fourth topic mensuration हो गया. अब सर fifth topic कौन सा important है? Fifth topic मैं बोलूँगा, it is more about a generic topic. You will be getting questions which are not from any topic. ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के नहीं होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल के द स्पीड रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स अटैच्ड टू दैट. ऐसे करके कुछ क्वेश्चन बन गया, तो जितने कंपार्टमेंट अटैच करोगे उतना हो जाएगा. या एक क्वेश्चन आता है कि टोटल फेयर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स, या फिर इस टाइप से रहेगा. तो ये डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, या आप बोल सकते हो जेनरिक क्वेश्चंस हो गए. तो जेनरिक क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स इसके अंदर में आ सकता है, सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो इनफैक्ट यू माइट गेट अ क्वेश्चन सीरीज वाला क्वेश्चन आ सकता है, मे बी एपीजीपी का. तो वो हम बोलेंगे थोड़ा सा मिक्स है, उसमें कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं. जहां पर कुछ क्वेश्चन तो किसी टॉपिक के नहीं होंगे, बट हाँ थोड़ी सी क्वांट सॉल्व करनी है, जिसको हम बोलते हैं जेनरिक टॉपिक्स भी आ सकते हैं. तो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है जिन पे हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए. ऑब्वियसली वी हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, वी हैव टू डू ऑल द टॉपिक्स. अभी तो हमारे पास टाइम है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू डू ऑल द टॉपिक्स, वो हम करेंगे ही करेंगे. लेकिन अगर कोई पूछेगा 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से जो करने ही करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो वो ये वाले टॉपिक्स है जिसके बारे में मैंने बात करी है. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से, इफ यू वांट टू स्टडी इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, सर मैं शुरू से लेके एंड तक सीक्वेंस वाइज मुझे पढ़ना है, पूरा क्वांट समझना है, या फिर पूरा MSCT सारी प्रिपरेशन करनी है, तो वी हैव लॉन्च्ड अ बैच फॉर दैट. यू कैन जॉइन दैट पर्टिकुलर बैच. यू कैन विजिट अवर वेबसाइट और डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, एंड यू कैन सी द डेमो क्लासेस आल्सो, एंड देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ अगर पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी कर रहे हो. अदरवाइज प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल सो दैट यू विल बी गेटिंग दीज वीडियोस जो हम बना रहे हैं अभी. कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें विल बी डिस्कसिंग इट. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच.